استاد ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت بڑی تائید حاصل ہوئی یہاں آ کر کے۔ تقریباً میں جس وقت میتیگاں مدرسہ میں پڑھا تھا، ایک مرتبہ حضرت نے اور مفتی مفتی صاحب اور بہت سارے حضرت آئے تھے مغرب کے بعد میتیگاؤں میں۔ اس وقت ہم بھی پڑھ چکے ہیں ہدایت نام کی کلاس میں۔ تو اسی طرح بورڈ میں مجھ کو اور اسی طرح دعا والے ساتھی تھے، کہا کہ بورڈ میں کوئی سنا لکھا، تو میں نے قل هو اللہ لکھا اور انہوں نے بتایا کہ بتاؤ اس میں کیا کیا آ گیا۔ یہاں کا جو طریقہ انہوں نے 2 دن سے ہم کو جو سکھا رہے تھے، اس کو میں آج سے 25 سال پہلے حضرت سے میں نے اس کو آغاز کیا، اور آج بھی، اور یہ آج کل 2 دن ملا کر کے بھی ہمیں اس کو سکھائے ہیں، دکھائے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی طریقہ تعلیم یہی، اور آج مجھے تائید بھی حاصل ہے۔ عموماً میں کلاس میں وہی پڑھاتا ہوں جیسا کہ ماضی کا جو حکم ہے کہ اس کے آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے، مگر وارث اس کے کسی کارن کی وجہ سے، کسی وجہ سے، جیسا کہ وہاں یہاں آنے کے بعد بہت سے فائدے ہوئے۔ مثال کے طور میں ایک فائدہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم جب پڑھاتے تھے کسی قاعدے کو، صرف نور کے کسی قاعدے کو، تو کتاب کے اندر جو مثالیں ہیں بس اسی کو اتباع کر لیتے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت نے وہ سمجھایا کہ کسی مسئلے کو اگر کتاب کے علاوہ احادیث یا دوسرے قرآن کی آیات سے اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو وہ مسئلہ بچوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ یہ حضرت نے بھی ایک مسئلہ بیان کر کے، قاعدہ بیان کرنے کے بعد بہت سارے مثالیں قرآن کی آیات سے، کتاب کی مثال سے یہ بیان کر دیا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب پڑھاتے تھے کتاب کے اندر، مثال کے طور پر صرف کے اندر کسی باب سے ایک مصدر آتے تھے، تو اسی کو ہم کتاب کے اندر جو انداز ہے بیان کرنے کا، ماضی، مضارع، امر، اس طریقے سے گرداتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد حضرت نے وہ بچوں کے ذہن کے اعتبار سے وہ سمجھانے کی جو رہنمائی کی ہے کہ کبھی ماضی سے پکڑو، کبھی امر سے پکڑو، کہ وہ ذہن میں الجھا دینا ہے بچوں کو۔ یہ بھی انداز مجھے بہت پسند ہوا، یہ بھی مجھے فائدہ ہوا اس سے کہ دو۔ اور میں ارکان تعلیم ترقی بورڈ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ہم اساتذہ کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو ہر مہینہ بچوں کو بھی ساتھ لا کر 1-2 دن کا وہ پروگرام کیا جائے تو بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، اساتذہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، میرا نام محمد حبیب الرحمن ہے۔ فی الحال مدرسہ حسینیہ اداری میں خادم التدریس کی حیثیت سے ہوں، اور الحمدللہ اس تدریس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ جو قلت وقت کی بنیاد پر میں زبان پہ لانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ فائدہ بہت ہوا۔ اس بنا پر میں تمام اراکین تعلیمی ترقی بورڈ کو تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان حضرات کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور ان حضرات کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے جس مولا کریم نے ہمیں اور آپ کو یہاں کچھ پڑھنے اور کچھ پڑھانے، کچھ لکھنے، کچھ لکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا نعمت ہے۔ تو ایک بات ہے، اکثر بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے، تعارف پیش کیا۔ میرا نام محمد شاہجہاں علی، میں 6 نمبر بغیر نور مرکز ہوں۔ تو اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے جو حضرات صرف نحو پڑھاتے ہیں تو
उन्हीं दो किताब में मेहनत करते हैं, और जो ये दो किताब नहीं पढ़ाते हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं लगाते हैं और मेहनत नहीं करते। तो इस वजह से वो कमियाँ हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सरफ एक्स्ट्रा होता चला था। तो इससे सभी हजरात इन दो किताबों को हर वक्त मुतला करना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, इस तरह के प्रोग्राम कम से कम साल में 2 मरतबा होना चाहिए और वक्त कम होना चाहिए, इसलिए कि सबको मशगूलियत है, मस्जिद है, इमामत है। तो इसलिए मैं जिम्मेदारान हजरात से गुजारिश करता हूँ, चाहे वक्त कम हो, 2 दिन हो, लेकिन कम से कम साल में 2 मरतबा होना चाहिए। तो यही गुजारिश है। के हुक्म से मैं यहाँ आया था। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के जिम्मेदारान से मेरे नाम मोहम्मद अशरफ अली, मदरसा दरियागढ़ हरियाणा मदरसा हैलाकंडी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आप लोगों के वहाँ मदरसा के जिम्मेदारान और बोर्ड के जिम्मेदारान के शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब सुना कि सर्फ नौ की तमीनात होगी वहाँ प्रोग्राम है, इसलिए मेरे बहुत शौक़ हुआ, क्योंकि पिछले 2 साल हुआ मेरे फारिग होने का। मेरा शौक़ हुआ कि मैंने ये ख्वाहिशमंद हुआ कि कई सर्फ नौ की तमीनात हो जाए तो मैं तमरीन करूँ, पढ़ाने से अच्छा रहेगा। इसीलिए जब वहाँ सुना बोर्ड की तरफ से तमरीन होगी, इसीलिए मैं वहाँ हैलाकंडी से आया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा शौक़ था ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह खूब फ़ायदा हुआ। सर्फ नौ की तमरीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद साहब ने इतना शॉर्ट करके बताया, देखिए यहाँ से पूरे सर्फ नौ 5 सब आ जाते हैं। ऐसा तरीका पहले नहीं पाया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इस तरीक़ा को आपको खूब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। हमारे मदरसा के जाकर भी यही पेश करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह खूब फ़ायदा होगा। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मुहतरम, आज इस मुबारक महफिल के सदर मुहतरम काबिल एहतराम अल-आसाम तालीमी तरक्की बोर्ड के नाज़िम उमूमी साहब, हमारे जामिया के नायब महतमी और मुख्तलिफ मदारिस से आने वाले असातिज़ा किराम, हज़रत ने कहा शुक्रिया का, तो उसने तमाम का शुक्रिया अदा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ हम साथी भाई हज़रत मौलाना इमदाद साहब ने एक हदीस तिलावत किया आप लोगों के साथ। पहले अपना तारुफ। मेरा तारुफ, मेरा नाम मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान अल-क़ासिमी, मैं जामिया आसाम दारुल हदीस के उस्ताद हूँ। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बिलखुसूस आज हमारे जिस उस्ताद ने हमको यहाँ तमरीन और मश्क कराई है, हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद अल-क़ासिमी साहब दमाद बरकातहू का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और खुसूसन मैं मौलाना मुश्ताक अनवर साहब दामाद बरकातहू का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि उनके वसीले से ये बोर्ड कायम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिसने किसी इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसने किसी इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो हम पहले हमारे जो मुश्ताक अनवर साहब दामाद बरकातहू मौलाना साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके वसीले से ये बोर्ड कायम है। और उनके जो बोर्ड के कारकुनान हैं उन सब ने हमारे यहाँ इस तदरीब कैसे हमारे पढ़ाई हो, हमारे पहले जो साथी गए थे उसने कहा तो हम पढ़ने के ज़माना में तो सिर्फ रटना है और तारीफ़ात याद करनी है, हमने तारीफ़ात याद की है। लेकिन आज हमने देखा है जो हज़रत ने जो ये 2-3 जुमला 2 आयात का मिसाल यहाँ पेश की गई है किताब से, उनको तमरीन जब कराए तो जितने हम असातिज़ा यहाँ आए हैं तशरीफ़ लाए, कोई सरफ पढ़ा रहे, कोई पांडित पढ़ा रहे, कोई नहवा पढ़ा रहे। तो जब सरफ का मसला आता है, जो सरफ पढ़ाने वाले वो फ़ौरन जवाब देते हैं। इल्मु सरफ जो पांडित पढ़ा रहे, पांडित की का कोई जब सर्वे सगीर की गर्दान हज़रत ने पूछा है तो गर्दान उसकी याद है वो फ़ौरन बता दिया। ऐसे जो नहवा का मसला आया है, हमें तो मसला है पढ़ा रहे हैं, मुज़ाफ़िर ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन
साहब मौजूद है, मुफ्ती साहब मौजूद है, आत्मान भी मौजूद है। मुस्तकबिल में ऐसी मजलिस और ऐसी तकरीब की मजलिस कायम की जाए और ज़रा वक्त लंबा हो, क्योंकि हज़रत ने फरमाया कि इंशाअल्लाह हम आइंदा अहसन तरीक़ा से करेंगे। हज़रत ने अपने बयान में ये बात पेश की है। उसी वजह से मैं तमाम हज़रात से ये ख़ासतौर से बोर्ड के हज़रात से ये मैं गुजारिश मेरी तरफ से ये दरख्वास्त है कि आइंदा ऐसे प्रोग्राम को ज़रा तवील मुद्दत हो और सरसरी नज़र से ये तीनों किताब की आवाज़ें मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ है आप लोगों के वसीले से। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया व आखिरत में जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। सानियन हम अरबाब जामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा भरपूर जिस तरह हक़ तक खिदमत की और हमें बगैर किसी तकलीफ़ के यहाँ 2-3 दिन आराम के साथ गुजारने की सआदत नसीब हुई हमारी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस प्रोग्राम का, तो हज़रत उस्ताद ने सुबह भी ये बात हमारे सामने रखे थे कि पहले पढ़ाने के ज़माने में या पहले दौर में किताबें पढ़ाई जाती थी, तमरीनात पर ख़ास जोर नहीं दी जाती थी। और हम भी जबकि पहले ज़माने के लिए आज का दौर का है, इन्हितात इल्म ज़वाल इल्म के दौर का है, हम भी पढ़ाई के ज़माने में इस तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी। सिर्फ किताब के इबारत तारीफ़ात याद करना, रट लगाना, उसी पर हमने इत्तिफा किया। बहरहाल आज जब यहाँ हम आए और हमारी कोताही और कमियां पर हमारे नज़र पड़ी, तो हम भरपूर इससे इस्तेफादा का हमें मौका मिला। गरचे दारुल देवबंद या बड़ी जमात में जाने के बाद आजकल जो सरफ नहव की किताबों का मुताला करने का मौका मिला और उसमें हम देखें ये तमरीनात का जो शक्ल है, लेकिन वो सिर्फ हमारे मुताला के हद तक महदूद था। आज जब हज़रत उस्ताद के सामने इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, इस प्रोग्राम के ज़रिया बिलमुशाफ़ा हमें तमरीन और तदरीबात का एक तरीक़ा मालूम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमने इससे इस्तेफादा किया, हमें बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। हम इसकी वजह से ज़िम्मेदाराना मदरसा, ज़िम्मेदाराना बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह बोर्ड के ज़रिया आइंदा भी हमें मुख्तलिफ़ तौर तरीक़े से बोर्ड के ज़रिया बोर्ड से इस्तेफादा हासिल करने का मौका हमें फ़राहम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मुहतरम साहब की मेरा नाम मोहम्मद रशीदुल हक, मैं अशरफुल मदरसा के मुदर्रिस। सबसे पहले मैं मेरे उस्ताद मुहतरम की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद तमाम जामिया के तमाम अरकान के जो उस तरफ की बोर्ड के तमाम अहबाब के हैं सबके शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ बातें यहाँ आने के बाद जो हमको नज़र पड़ी है, तो ये तरीक़ाकार जो हज़रत उस्ताद साहब ने हमको सिखाया वो पहले से हमको मालूम है, क्योंकि हमने पहले से उन्हीं से ये सब और पंचगंज पढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ों को हमारी नज़र में आई है जिसको बताना चाहता हूँ, जो हमको फ़ायदा हुआ है। वो एक फ़ायदा ये है तो उमूमी सवाल किस तरह से बच्चों से करना चाहिए, फिर खुसूसी सवाल किस तरह से बच्चों को करना चाहिए, ये एक तरीक़ा जो हमने सीखा है, ये बेशक बहुत मुफीद बात है। और दूसरी बात जो उस्ताद मुहतरम ने हम सबको सिखाया है कि बच्चे जो दरसगाह में होते हैं उनसे किस तरह से पेश आना चाहिए। अगर कोई बच्चा गबी है, उन जहन वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उसके साथ किस तरह से सलूक करना चाहिए। इस तरह की बातें जो हमको समझ में आई यहाँ आने के बाद, इसलिए मैं उस्ताद मुहतरम का शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि यहाँ आने के बाद हमारे अंदर जो कमी है, हम जो समझते हैं कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के बाद हमको पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। बस यही एहसास इस प्रोग्राम में हमको होता है, या फिर उसके बाद मेहनत करने की जो एक दिल में एक
शौक पैदा होता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए।